حنان کو وہ ان کے کمرے میں سے لے کر تو آئی تھی، مگر دل و دماغ وہ ادھر ہی چھوڑ آئی تھی۔ حنان کب کا سو چکا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خود ہی اپنی ہمت پر حیران تھی کہ کیسے وہ اتنا کچھ بول گئی تھی انہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ کر باہر آئی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر وہ ہمت کیے دروازے تک آئی۔ ناب کھول کر ان کی حالت دیکھنے کی ہمت خود میں مفقود پائی۔ وہ تو ناب کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ وہ بستر پر چٹ لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو وہ اپنے بستر سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ شکر ہے ٹھیک ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وضو کر کے باہر آتا، وہ تیزی سے دبے پاؤں نیچے اتری اور خود بھی وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد زدیان قریبی مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو چینج کیے روزانہ کے معمول کے مطابق جم میں چلا گیا۔ وہ کچن میں موجود تھی، اس کے لیے گرم پانی کی بوتل بنا کر رکھتے ہوئے اب اس کے لیے فریش جوس بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نسیم باجی آپ یہ سر کو دے آئیں۔ حنا جی اب تو سر کہنا چھوڑ دیں، وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا کہوں؟ وہ سیب کے چھلکے اتارتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زدیان کہا کریں اور کیا، اور جائیں اب یہ آپ خود دے کر آئیں۔ نہیں آپ ہی دے آئیں، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ بی بی جی آپ انہیں ان کے حال پر مت چھوڑیں، انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، ان کے آگے پیچھے پھریں۔ یوں ہر وقت کمرے میں چھپ کر رہیں گی تو کیسے انہیں آپ کی ذمہ داری کا احساس ہوگا؟ انہیں اپنی طرف متوجہ کریں۔ وہ اسے مشورہ دینے لگی۔ کتنی بری بات ہے نسیم باجی، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اس میں کیا برائی بھلا؟ وہ آپ اپنے شوہر کو متوجہ کر رہی ہیں، کسی غیر کو تھوڑی نہ جو برا لگے گا۔ اف نسیم باجی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب۔ چلیں شروعات اسی بوسہ سے کریں، جائیں دیکھ کر آئیں۔ نہیں وہ جم میں ہے اور اس حالت میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، آپ دے آئیں نا پلیز۔ ناشتہ پکا میں لے کر جاؤں گی، ابھی میں حنان کو دیکھ لوں، اسے تیار کر کے لاتی ہوں ناشتے کی میز پر۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی۔ آپ پلیز مجھے بی بی جی کہنا بند کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ارے بی بی جی آپ اب زدیان صاحب کی بیوی ہیں تو اسی حساب سے کہنے لگی، آپ مجھے میرے نام سے ہی بلائیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ خوش۔ زدیان فریش ہوئے باہر آیا تو نیکسٹ سین سے تیار تھا، ٹی وی لانچ میں بیٹھا تھا۔ صبح 7 بجنے کی خبریں دیکھنا اس کے معمول میں شامل تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ایل ای ڈی کا ریموٹ دور پڑا تھا۔ نسیم ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ حنا حنان کو تیار کر کے اپنے ساتھ باہر لے کر آئی تو زدیان کو اخبار میں منہ دیے پایا۔ وہ نمحق انداز میں اخبار پڑھنے میں محور تھا۔ ریموٹ پکڑاؤ۔ اس نے اپنے پاس چہل پہل محسوس کی تو کہا۔ وہ سمجھا نسیم ہے۔ حنا نے ریموٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایل ای ڈی آن کرو، اگلا حکم ملا۔ زدیان مجھے اسے آن کرنا نہیں آتا۔ اس نے اخبار سے نظر اٹھا کر سامنے موجود ہستی کو دیکھا۔ اس کی کہی بات ذہن میں آئی، مجھے آن کرنا نہیں آتا؟ کیا تمہیں اسے آن کرنا نہیں آتا؟ وہ بے حد حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بابا کے گھر یہ تھا، پہلے غنیہ آپی ہوتی تھی تو وہی جگاتی تھی، اس کے بعد میں نے کبھی لگایا ہی نہیں۔ وہ سر جھکائے ہوئے اسے شرمندگی سے بتانے لگی، بابا آج پارک جانا۔ وہ حنا کا ہاتھ چھڑوا کر اس کے پاس آیا۔ زدیان اس کے اپنے پاس آنے پر حیران ہوا۔ حنا اسے باہر لانے سے پہلے سمجھا کر لائی تھی کہ وہ اس کے بابا ہیں، اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ان کے ساتھ بھی باتیں کیا کرے، ان سے بھی فرمائش کیا کرے جیسے وہ اس سے کرتا ہے۔ اسی لیے وہ زدیان کے پاس جا کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، آج میں گھر جلدی آؤں گا، پھر چلیں گے۔ وہ اس کے گال چھو کر پیار بھرے انداز میں بولا۔ زدیان نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ آج نیوز دیکھنے کا ارادہ منسلک کیے حنان کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچتے ہوئے وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو حنا بھی آج پہلی بار ان دونوں کے ساتھ بیٹھی۔ نسیم نے ناشتہ سرو کیا۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے دوران وہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر آج اتنے عرصے بعد طمانینت دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سورج کی روشنی سے لان کا سبزہ بھی اجلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ یارک نے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تو سامنے کا مناظر دیکھا۔ دل کو بدلنے کی کوشش کی تو سب کچھ نکھرا نکھرا سا لگا۔ وہ فریش ہوئے تیار ہوا، پھر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوسٹ بنائے، پھر ایگ فرائی کیے اور ایک طرف کافی بیٹ کرنے لگا۔ اسے پتا تھا نور کو کافی پسند ہے۔ گرما گرم بھاپ اڑاتا کافی کا مگ فرائی
अंडा और टोस्ट एक ट्रे में रखे वो रूम में आया, जहां नूर अभी तक सर्दी की वजह से कंबल में दबकी पड़ी थी। उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी। याक ट्रे टेबल की साइड टेबल पर रख कर उसकी तरफ पलटा और बिस्तर पर जगह बनाता हुआ उसके पास बैठा। उसकी मुड़ी गालों को छूती हुई पलकों को फूंक मारकर हिलाया। उसकी मखसूस महक और फूंक दोनों नूर को झटपट उठने पर मजबूर कर गए। वो हक्का सी उसे पूरी आंखें खोल कर देखने लगी। सुबह बखैर, वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला। नूर ने बिस्तर में छुपा हुआ अपना हाथ बाहर निकाला और धीरे से याक के गाल को छुआ। ख्वाब नहीं देख रही, हकीकत है ये, वो मुस्कुरा कर बोला। नूर हड़बड़ा कर उठ बैठी और शर्मिंदा सी सर झुका गई। याक ने खाने वाला ट्रे उठाकर उसके सामने पेश किया। नाश्ता कर लो। वो कंग सी उसकी काया पलट देखती रह गई। वो तो कभी खुद उठकर एक गिलास अपने लिए पानी भी ना लेने वाला इंसान था। कुजा के नाश्ता बनाया। यहाँ के ऑफिस में पहला दिन है, लेट ना हो जाऊं। शाम को मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। वो उसके दाएं गाल को होले से थपथपाता हुआ उठा और लैपटॉप वाला बैग और मोबाइल उठाए बाहर निकल गया। नूर भी यकीनी सी ट्रे में मौजूद नाश्ते को देख रही थी, फिर अपने गाल पर हाथ रखे जहाँ उसका लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। इस प्यार भरे वाकये को हकीकत के पहरान में लिपटे हुए देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो पुलिस यूनिफॉर्म में मुबलिस तैयार हुए, सर पर कैप जमाए बाहर निकला तो सब नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। दिलबरा नूर के जाने के बाद निगत बेगम के साथ किचन में हाथ बटाने लगी थी। बाकी का काम तो हेल्पर्स करते थे, मगर किचन का काम घर की खवातीन के जिम्मे था। निगत बेगम और दिल भी नाश्ते मेज पर चुनने खुद भी अपनी अपनी जगह पर बैठी। याक ने यहाँ के ऑफिस का बहुत काम संभाला हुआ था। उसके चले जाने से मुझ पर फिर से काम का बहुत बर्डन आन पड़ा है। जमात तगल्लुत के लहजे में परेशानी की झलक थी। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? मैंने भी MBA किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं बिजनेस में आपकी मदद कर सकती हूँ। बेटा जी, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। तुम बड़ो और अपने शौहर से पूछ लो। उन्होंने शबाब तगल्लुत और फरजाम की तरफ देखकर कहा। ये ऑफिस चली जाएगी तो किचन के काम मेरी मदद कौन करवाएगा? निगत बेगम ने तल्ख लहजे में कहा। इतने सारे मुलाजिम हैं घर में, किसी से भी मदद लेना। ठीक है बच्ची की, अगर खुशी इसी में है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, मगर असल फैसला तो फरजाम का ही होगा। शहबाज तखल्लुस ने कहा। बोलो, तुम क्या कहते हो? दिलबरा ने मदद तलब नज़रों से उसे देखा। मैं काम ख़त्म होते ही जल्द वापस आ जाया करूँगी, वो तेज़ी से बोली। ठीक है, चली जाओ। वो जूस का घूंट भर कर बोला। थैंक यू एवरीवन। अंकल, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्वाब था बिजनेस वूमेन बनने का, जो सिर्फ आपकी वजह से पूरा हुआ। एक ही वादे पर तुम्हारा शुक्रिया कबूल करूंगा। वो क्या अंकल? वो अचबे से इन्हें देखने लगी। तुम मुझे अंकल की बजाय बाबा बोलो, नूर की तरह। वो यहाँ नहीं तो उसकी कमी तुम पूरी करो। आई एम रियली वेरी सॉरी अंकल, मगर मगर मैं ऐसा नहीं कह सकती। मुझे नफरत है बाबा लव से। वो स्पार्ट अंदाज में कहते हुए वहां से उठ गई। फरजाम के साथ साथ सबने उसका बदला हुआ रवैया नोट किया। इस वक्त फरजाम लेट हो रहा था। आकर उससे बात करने का इरादा किए वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाहर निकल गया। ये एक आलीशान होटल का मनाजिर, जहाँ 20 मिनट में बनी बार में अधभरमा हुलिये में सख्त नाजुक डीजे के तेज म्यूजिक पर नाच रही थी। पाशा वहां मौजूद शराब और शबाब के नशे में चूर उनके साथ हाथ में वाइन का गिलास लिए झूम रहा था। उसके आदमी इर्द गिर्द फैले हुए थे। इतने में बैकडोर से एक लड़की अंदर आई तो पाशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और एक जानदार मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। वो लड़की ब्लैक लेदर जैकेट और पैंट में मुबलिस, हाथों पर ब्लैक ग्लव्स चढ़ाए, चेहरे पर डायमंड मास्क पहने, सुनहरी बालों की हाई टेल किए, बारीक पेंसिल हील वाले कोअर शूज पहने अंदर आई। टक टक की आवाज ने सबको उसकी तरफ मुतवज्जो किया। फरजाम, जो वहां हुलिया तब्दील की एक कस्टमर का रूप धारे इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, पाशा की तरफ बढ़ती हुई लड़की को देखकर गौर करने लगा कि ये कौन है जिसके बारे में USB में भी कुछ सुराग नहीं मिला था। शायद पाशा की कोई साथी, मगर कौन? फरजाम ने मास्क में से उसकी आंखों पर गौर किया। वो पाशा के साथ हाथ मिलाने लगी और हाथ मिलाने के दौरान उसने कुछ पाशा के हाथ में बहुत महारत से थमाया कि किसी को कुछ शक ना हुआ, मगर वो अमल फरजाम की जेरे निगाह
से मनफी ना रह सका। वो आंखें तो एक साया सा उसके पास आकर गुजरा, उसकी आंखें शक होने पर पूरी तरह खुल गईं। दिल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद को ही तसल्ली देने के अंदाज में हल्के से बोला। शाम के साय में पुलिस की 3 गाड़ियां इस सीक्रेट के सामने मेन सड़क पर रुकी थीं। फरजाम और उमर के अलावा बाकी सब पुलिस यूनिफॉर्म में मुबलिस थे। उनकी कुल तादाद 24 थी। फरजाम की हिदायत पर उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। फरजाम खुद अंदर था और वहीं बैठे हुए आहिस्ता आवाज में इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इर्द गिर्द की गलियों को ब्लॉक कर दिया गया था। लोग हैरत से रुक कर इन्हें देख रहे थे। एक आदमी जो बहजियर फकराना हुलिये में था, वो जल्दी से सर नीचे झुकाए किसी को कॉल करने लगा। सर, पुलिस यहाँ पहुंच गई है, अभी थोड़ी देर है, आप जल्दी से निकलने की कोशिश करें। उसका इतना ही कहना था कि पाशा ने उस लड़की को इशारा किया। फरजाम अपनी जगह से तेजी से उठा और अपनी शक को यकीन में बदलने के लिए उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहा। वो उससे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। सारी लाइट्स अचानक बंद हुई तो हर तरफ अंधेरा छा गया। सब उठो जल्दी, बाहर पुलिस आ चुकी है, अपने अपने सिले पकड़ो और इनका मुकाबला करो, जल्दी करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। पाशा अंधेरे में हवास बख्ता सा कहता एक जानिब भागा। वहां भगदड़ मच गई। काशी, जल्दी निकलो यहाँ से, पुलिस की रेड पड़ गई है। पाशा ने फोन पर काशी को भी मुताला किया। बाहर से उन्होंने हमें घेर लिया है, ज़ेरे ज़मीन का खुफिया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। आओ मेरे पीछे। होटल के बेसमेंट में गोलियों की तड़ाहट सुनाई दे रही थी। लोग गोलियों की वजह से इधर उधर छुप गए थे। कुछ आदमियों ने वहां से निकलने की कोशिश की मगर वो पकड़े गए। पुलिस की सिपाही इनका डटकर मुकाबला कर रहे थे। इन्हीं में से एक आदमी जो कि पाशा का चमचा था, फरजाम ने झुककर उसे गिरबान से पकड़ा और अपने सामने खड़ा किया। पाशा कहाँ है? उसने सख्त लहजे में पूछा। वो कुछ बोल नहीं सका। फरजाम ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा तो वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। बाकी सिपाही भी बेसमेंट में बने मुख्तलिफ कमरे चेक करने लगे जिन्हें फरजाम ही लीड कर रहा था। वो भाग गया है, उसने 2-3 मुक्के खाने के बाद जल्दी से कहा। दूसरे लोगों ने भी हर जगह चेक कर लिया था लेकिन यहाँ कोई ना मिला। सब फरार होने में कामयाब हो चुके थे। डैम इट, वो झुंझलाकर कहता वापस मुड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो कान का आला दबाते हुए अपने हेड को पाशा के भागने की इत्तला दे रहा था। शाम को जदियान वक्त रहते वापस आ गया। आज मौसम काफी खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर गहरे बादलों ने बसेरा कर लिया था। इसी हिसाब से हिना ने आज पकौड़े बनाने का सोचा। एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम किए पकौड़े बना रही थी, दूसरी तरफ हरी मिर्च की चटनी बना रही थी। अपने पास हनान को शेल्फ पर बिठाकर उसे साथ साथ नूडल खिला रही थी। अचानक हन होन दस्ते में हाथ से चटनी पीसते हुए हरी मिर्च का दाना उसकी आंख में गिरा। एक जोरदार चीख उसके गले से बरामद हुई। जदियान जो फ्रेश हुए अपनी कमीज के कल्फ मोड़ते हुए नीचे आ रहा था, उसकी चीख सुनकर तकरीबन भागते हुए किचन में आया। वो आंख पर हाथ रखे चिल्ला रही थी, हिना जी आंख में पानी के चींटे मारे, ठीक हो जाएगा। नसीम उसे मशवरा दे रही थी। बहुत जलन हो रही है। वो जलन से दोहरी होते हुए बोली, इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़े खींच कर संग के पास ले गया और हाथ में पानी भरकर उसको थोड़ा सा ऊंधा किए उसकी आंख में छपके मारने लगा मगर वो आंख खोल ही नहीं रही थी और जलन से कढ़ा रही थी। बेवकूफ लड़की, आंख खोलोगी तो ही पानी अंदर जाएगा और जलन दूर होगी। वो उसकी हालत से चिढ़कर गुस्से से बोला, नहीं खुल रही, क्या करूं? सच्ची बहुत जलन हो रही है। जदियान ने एक हाथ की 2 उंगलियों से उसकी आंख के पर्दे को खोला और दूसरे हाथ की मुट्ठी में पानी भरकर उसकी आंख में छींटा मारा। कई दफा ये अमल दोहराया। अब ठीक हो? वो पूछ रहा था। कुछ मगर अभी भी आंख नहीं खुल रही। नसीम, सूप लाओ। हरी मिर्च की जलन सिर्फ पानी से नहीं जाएगी, सोप लगा कर धो। वो हुक्म जारी किए बोला। हिना ने सोप से चेहरा धोया, आंख खोली तो मगर सुर्खी मायल हो चुकी थी और इस आंख से मुसलसल पानी बह रहा था। स्टूपिड गर्ल, उसे खाना बनाना आता है, यही कह रही थी तुम? वो नसीम की तरफ देखकर तअस्सुफ से सर हिलाकर बोला, बाबा मम्मा को दर्द है, इन्हें फूंक मारे। जब मुझे दर्द होता है मम्मा मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर फूंक मारती है, फिर प्यार करती है। आप भी करो ना मामा को, फिर मामा ठीक हो जाएंगी। हनान शेल्फ पर बैठा कब से हिना की हालत देखकर परेशान था। जदियान से बोला, मैं ठीक हूँ हनी। वो अपनी आंख पर हाथ रखकर बोली, इधर दिखाओ। वो हिना के शाने से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब घुमा चुका था। तुम्हें तो हुआ हवा भी अपने साथ उड़ा कर ले जाए।
वो उसके स्मार्टनेस पर चोट करते हुए बोला। हिना ने आंख से हाथ हटाकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंख में फूंक मारने लगा। हनान दोनों हाथों से तालियां बजाने लगा। बाबा मम्मा प्यार, हाँ हाँ हाँ, वो खिलखिलाकर हंसा। हनान, तुम्हें पार्क जाना है या नहीं? जदियान चलते हुए उसके पास आया। जाना है बाबा, चलो फिर आओ। वो उसे शेल्फ से उठाकर नीचे उतारते हुए बोला। बाबा मम्मा भी। वो हनान की फिर से जा ख्वाहिश पर तलमिलाकर रह गया, मगर उसकी खुशी के लिए कड़वा घूंट भी भरना पड़ा। चलो, या तुम्हें कोई खास इंटोनेशन देना पड़ेगा, वो लठमार अंदाज में बोला। हनान के चेहरे की खुशी को मौन पड़ते नहीं देख सकती थी, इसलिए बावजूद उसकी दस्त रवैये के भी वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। नसीम, तुम भी चलो, हनान के लिए पानी की बोतल भी ले लो और फुटबॉल भी ले आओ। वहाँ मेरा लिटिल चैंपियन फुटबॉल से खेलेगा। खेलेगा ना? जी बाबा, वो तालाब में सर हिलाकर खुशी से बोली। फिर सब कॉलोनी के करीबी पार्क में दाखिल हो गए। नसीम और हिना बेंच पर बैठकर इन दोनों को फुटबॉल खेलता हुआ देखने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों थक कर उनके पास आए। बाबा, मुझे पॉपकॉर्न खा लेने हैं। वो दूर लगी पॉपकॉर्न की मशीन की तरफ इशारा करके बोला। आओ, लेकर देता हूँ। जदियान ने उसे कहा। साहब जी, आप थक गए होंगे, आप इधर बैठे, मैं लेकर आती हूँ। नसीम ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम ले आओ। वो उसे वॉलेट से पैसे निकाल कर देते हुए बोला। हिना के साथ हनान बैठा तो जदियान दूसरी खाली जगह पर बैठ गया। बाबा, वो देखें। जदियान ने उसकी तवज्जो किसी जानिब करवाई। जदियान ने उसकी उंगली के इशारे पर देखा तो दो बच्चे अपने वालिदैन के साथ मौजूद मोबाइल पर सेल्फी ले रहे थे। बाबा, हम भी बनाए? ओके। वो अपनी पॉकेट से आईफोन निकाल कर उसे सेल्फी मूड पर करते हुए बोला। एक मिनट बाबा, ऐसे नहीं, आप मुझे किस करें और मैं मम्मा को करूँगा, फिर आप तस्वीर बनाना। तस्वीर नहीं, सेल्फी। वही बाबा। जदियान ने तीनों को कैमरे में सेट किया और लब हनान के गाल पर रखने लगा तो वो फौरन नीचे हुआ। हना जो अपना गाल हनान के आगे कर रही थी, अचानक उस पर जदियान के लबों के साथ साथ उसकी मूंछों की चुभन भी महसूस की तो झट आंखें मीच गई। सेल्फी कैप्चर हो चुकी थी इस मनाजिर की। जदियान तो खुद साख्त रह गया हनान की शरारत पर और शर्मिंदा सा रुख फेर गया, जबकि हिना का तो जैसे पूरे बदन का लहू चेहरे पर छलक आया था। चेहरा खफत के बासे सुर्ख हुआ, कानों की लुएं दिखने लगी। अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली। स्याह बादलों ने बरसने का मूड बना लिया। बारिश की नदी नदी बूंदें टपकने लगी। नसीम पॉपकॉर्न लेकर वापस आई। हनान जो अकेला फुटबॉल के साथ खेल रहा था, उसने फुटबॉल को किक मारी तो वो लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा। हिनान जो अकेला फुटबॉल खेल रहा था, उसने फुटबॉल को किक मारी तो वो लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा। नसीम, उससे पहले कि बारिश तेज हो जाए तुम हनान को लेकर घर चलो, मैं बॉल को लेकर आता हूँ। नसीम उसे बारिश से बचाते हुए तेजी से लेकर घर की तरफ बढ़ी। जदियान बॉल लेकर वापस लौटा तो वो अभी भी वहीं साख सी बैठी थी। मोहतरमा, यहीं रहने का इरादा है या घर चलना है? वो उसके सर पर खड़ा तेज लहजे में बोला, मगर वो जाने किस दुनिया में घूमती, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ए लड़की, चलना है या नहीं, छोड़ जाऊं? वो उसे गुमसुम देखकर उस बार ऊंची आवाज में बोला। वो जैसे हवासों में लौटी और अपनी जगह से खड़ी हुई। कपड़े काफी हद तक भीग चुके थे। वो दोनों साथ साथ घर की तरफ चलने लगे। आंखों के सामने बार बार कुछ देर पहले वाला मनाजर लहरा रहा था। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी दिखाई ना दिया। एक जोरदार ठोकर लगी। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसकी कमर से उसे थाम कर गिरने से बचाया। वो उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। जदियान ने उसे यकटक अपनी तरफ देखता पाकर झटका देकर छोड़ने लगा। वो होश में आई, मगर खुद को तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, जदियान ने उसे फिर से पकड़कर खड़ा किया, या शायद उसका हिना को होश में लाने का ट्रैक था। सर्दियों की सर्द सटरा देने वाली शाम, जब कोहरा छाया हुआ था, हवा में ठंड की हद दर्जा बढ़ चुकी थी। वो गाड़ी लॉक करके अंदर आया तो घर के अंदर का माहौल खौफनाक बना हुआ था। वो ये दिलकश माहौल देखकर ठटका। कोट एक तरफ रख कर वो आगे आया। डाइनिंग टेबल पर अनेक अक़साम के खाने मौजूद थे। सारी लाइट्स ऑफ किए बिना कैंडल्स की मध्यम रोशनी में डिनर सेट किया गया था। वो खुद जीन्स और लॉन्ग स्वेटर पहने, गले में मफलर लिए, लाइट से मेकअप में ऊपर से नीचे उतर रही थी। याक उसे देखता रह गया। अस्सलाम वालेकुम, नूरुल्लाह ने धीरे से कहा। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया। आप
हैंड वॉश कर लें फिर डिनर करते हैं। ठीक है अभी आता हूँ कहकर वो वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वापस आया। वो चेयर पर बैठा तो नूरुलैन ने प्लेट उसके आगे रख कर सब डिशेस पर से कवर हटाए। सारा चाइनीज खाना देख उसने हैरत से नूरुलैन की तरफ देखा। मुझे पता है आपको चाइनीज खाने पसंद है इसीलिए बनाया, मगर तुम्हें कैसे पता? मुझे तो आपके बारे में सब पता है, आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नापसंद, और भी बहुत कुछ। मसलन वो उसे देखते हुए पूछ रहा था और वो उसके छोटे छोटे सवालों के जवाब दे रही थी। तुम थक गई होगी, इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? आपके लिए कुछ भी करना मुझे सुकून देता है, मुझे अच्छा लगता है सब करना। हल्की फुल्की बातों के दौरान डिनर का इख्तिताम हुआ तो वो किचन में बर्तन समेट कर आई। आप काफ़ी पियेंगे? नहीं, काफ़ी का मूड नहीं। तुम आइसक्रीम खाओगी? आपको कैसे पता कि इस मौसम में आइसक्रीम खाना मुझे पसंद है? सच कहूँ? यार्क ने कहा। वो बोली, वैसे अंदाज़ा लगाया। चलो अच्छा अच्छा, चलो आओ आइसक्रीम खा कर आते हैं। लेकिन आप थक गए होंगे, आप आराम करें, खाना खा, आपको परेशानी होगी। तुमने भी तो मेरे लिए थकान की परवाह किए बिना इतना किया, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? चलो ना, बाकी की बातें रास्ते में पूछ लेना। वो पोर्च में से गाड़ी निकालने लगा। रुके। वो उसे गाड़ी खोलते हुए देखकर बोली, क्या हुआ, हम पैदल चलें? ओके आओ। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। आइसक्रीम पार्लर घर से कुछ दूरी पर था। 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो वहां पहुंच चुके थे। कप या कोन? कोन चॉकलेट फ्लेवर। ओके अभी लाता हूँ। कुछ देर में ही वो कोन लाकर उसे थमा चुका था। आप अपने लिए नहीं लाए? नहीं, मेरा गला खराब हो जाता है जल्द ही। वो दोनों वापसी के रास्ते पर चलने लगे। आप भी खाए ना, अकेले खाना अच्छा नहीं लग रहा। उसने जाक की तरफ कौन बढ़ाई। उसने मुस्कुराकर थोड़ी सी खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद उसे और भी ठंड महसूस होने लगी। यार्क पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले चल रहा था। नूर ने उसकी एक बाजू में अपने दोनों हाथ डाले। यार्क ने उसका चेहरा देखा जो ठंड के बासत नीला और सुर्खी माइल दिखाई दे रहा था। उसने नूर के शाने के गिर्द अपना बाजू रखकर उसे नरमी से अपने हारिस में लिया। नूरुलैन उसके साथ लगी अफसुदगी से सड़क पर चल रही थी। रात काफी हो चुकी थी। उस कोहरे में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस दो साए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। आज की इतनी बड़ी हार के बाद वो तनतनाता हुआ घर वापस आया। कमिश्नर ने उसे सुबह इस उस यूएसबी के साथ हाजिर होने का कहा था। कमरे में कदम रखा तो वो कंफर्ट में मुंह छुपाए पूरे इस्तकात के साथ बेड के बीचों बीच सोई हुई थी। उस पर एक भी नजर डाले वो सीधा अलमारी की तरफ गया और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वो वॉशरूम से निकला था, अपने गीले हेयर कट में उंगलियां चलाते हुए कबर्ड का खुफिया दराज खोला जहां उसने यूएसबी सेव की थी, मगर ये क्या, खाली दराज उसका मुंह चिढ़ा रही थी। वो सब चीजें उलट पुलट कर देखने लगा। सारा दराज छान मारा मगर कहीं भी उसे वो नजर नहीं आई। शर्ट किधर गई? गुस्से के आलम में उसने कबर्ड पर जोर से पंच मारा। जोरदार आवाज से दिलबरा की आंख खुली। वो टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वॉलेट जेब में डालते हुए बाहर निकलने ही लगा ही था कि कहाँ जा रहे हो? हटो सामने से। उसकी तरफ देखे बगैर कहा था। नहीं हटूंगी। उसने हरदर्मी दिखाई थी। हटो, गुस्से से कहते उसने अपने उसे हाथ से परे करते कदम आगे बढ़ाए थे। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं तो मेरी बात का सच सच जवाब दोगी। बोलो, क्या पूछना है? आज शाम मैं तुम आज शाम में तुम कहाँ थी? ये किस किस्म का सवाल है? मुझे सीधा सीधा जवाब दो। मैं अंकल के साथ उनके ऑफिस गई थी और उनके साथ वापस घर आ गई थी। इधर कबर्ड में मेरी एक ज़रूरी यूएसबी पड़ी थी, वो भी वहाँ नहीं। वो सवालिया अंदाज में अबरूज का स्मार्ट लहजे में पूछ रहा था। मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी चीज़ों से छेड़खानी करने की? मैं तो सारा दिन घर में नहीं थी, ऑफिस थी। मुझे क्या पता वो कहाँ गई? देखो दिल, मुझे सच बताना। तुम्हें पता है झूठ से मुझे सख्त नफरत है। वो उसके सर बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए घबराया। छोड़ो मुझे दरिंदे, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? वो उसकी आंखों में देखकर पूछ रही थी। दिल तो चाहता है तुम पर एतबार करूं, मगर दिमाग कहता है नहीं। देखो दिल, मर्द के लिए सबसे कीमती शय होती है एतबार। आज मैं तुम पर एतबार कर रहा हूँ, मेरे एतबार को मत तोड़ना, और अगर कभी तुमने मेरा एतबार तोड़ा तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। उसने सर्द लहजे में उसकी तरफ
देखे बिना लफ्ज अदा किए थे। देखता तो शायद कमज़ोर पड़ जाता। ऐसा क्या करूं जो तुम्हें मुझ पर एतबार आ जाए। वो उसकी शर्ट का कॉलर दबोचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी, आज अपनी सबसे कीमती शर्ट मुझे सौंप दो। वो तंजी अंदाज में फरमाइश कर रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी दिल ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने दिमाग की सुनने की बजाय आज अपने दिल की सुनी। वो उन चंद गुने चुने दिनों को अपनी जिंदगी समझकर उसके सहारे सारी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। वो हार गई थी उसके सामने, जाने क्यों। वो अपना दर्द को छुपाना चाहती थी। दिल में कहीं छुलकती हुई चिंगारी आज उसके जज्बात से हार गई। आज उसे शिद्दत से अपनी माँ की याद आई। बाप का अनचाहा रिश्ता याद आया था कि कैसे वो इंसान उसकी माँ के जिंदगी रोल गया था। कैसे उसकी माँ ने तिल तिल मरते हुए जिंदगी का आखिरी सफर गुजारा था। पूरी जिंदगी कैसे वो अपनी जिंदगी की अजाबों से लड़ी थी। अपनी माँ की मौत का दुख उसके सीने में नासूर बनकर दौड़ रहा था। वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। अपने जख्मों को बखूबी पाल रही थी, मगर इन नासूरों पर मरहम फरजाम तगल्लुद ने उसकी ज़िंदगी में आकर रखा था। वो क्यों वो सब भुलाने देने को मजबूर हो रही थी उसके सामने। उसे देखकर, उसे जानकर वो ज़िंदगी में पहली बार अपनी ज़िंदगी मुकम्मल होने करने की ख्वाहिश मंद हो रही थी। क्यों ये दिल दगाबाजी पर उतर आया था। क्यों दिल मचल मचल कर उसके संग ज़िंदगी गुजारने का ख्वाह था। क्यों फरजाम तगल्लुद उसके दिल में छाई वहशतों और महरूमियों का उजाला करने पर तुला था। क्यों वो बार बार उसके करीब आकर उसके दिल को धड़का जाता था। क्यों वो उसे उसकी ज़िंदगी के मकसद से भटकाने पर मसर था। दिल बरा, मुझे एतमाद के बदले में सिर्फ वफा और एतबार चाहिए। उसने उसे खुद से अलग करते, उसके बालों में उंगलियां फंसाते, उसके शेरक पर अंगूठा फेरते हुए कहा था। दिल ने आंखें खोलकर उसे देखा। दिल, तुम चोरी करना कब छोड़ोगी। मैंने कब चोरी की। दिल, मेरा दिल चुरा कर पूछती है, कौन सी चोरी। दिल उसके गिर्द अपने नाजुक बाजू बांधकर उसके सीने से लगी। फजाम उसकी पेशरफ्त पर पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा कर उसे खुद में भेज लिया। एक लग जा गले के, फिर ये हसरत हसीन रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, पास आएंगे हम, नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डालकर हम रो लें जरा जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो। वो नीम आवाज में बोली। पल भर में उसकी नम आंखों में देखता वो उसे अपने साथ लिए बिस्तर तक आया और इसके लबों पर झुका पूरी शिद्दत से। और वो इस अचानक आफत पर बुरी तरह कांपी थी, बेहाल हुई थी, और उसकी शिद्दतें उसके लबों पर बढ़ती जा रही थी। उसने उस बार मज़ाहमत नहीं की थी, मगर वो बेहाल हो रही थी। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हुए उसके वजूद और उसकी सांसों को बेजान होता देखती वो बड़ी नरमी से उससे पीछे हुआ था। वो आंखें मेज का चेहरे का रुख फेर गई। मेरी तरफ देखो। वो दोनों हाथ उसके दाएं बाएं साइड तकिए पर रखे उसकी झुकी पलकों पर बारी बारी लब रखते कह रहा था, नहीं। उसने अपनी पलकें झुकाई, शर्म से लाल होते चेहरे को नफी में हिलाया था। मुझे मेरी जंगली बिल्ली वापस चाहिए, जो हर वक्त मुझे नोचने को नाखून तेज किए रखती है। इस डरी सहमी भीगी बिल्ली से रोमांस का मजा नहीं आ रहा। ठरकी, प्लीज वाले, तुम्हारे रोमांस पर अभी पानी फेरती हूँ। वो तकिए उठाकर उसको मारते हुए बोली, मगर फरजाम पहले से ही अंदाजा लगाकर उस तकिए को उसके हाथ से दबोचकर फेंकते हुए उस पर झुका। अब हामी भरकर पीछे मत हटो, मैं छोड़ने वालों में से नहीं। और उसके कान में मीठी मीठी सरगोशियां करने लगा और वो इन सरगोशियों में मदहोश हो रही थी। फरजाम की शिद्दतें और गुस्ताखियां मजीद बढ़ने लगी और वो इसकी शिद्दतों में भीग रही थी। आने वाले पल किसने देखे हैं। जो पल उसके हाथ में था, आज वो इन्हें जी भर कर जी लेना चाहती थी। फरजाम मदहोश था, इस बात से बेखबर कि यह एतबार उसे किस इम्तिहान में डालने वाला था। इस एतबार के नताइज में वो क्या भुगतने वाला था। वो अपनी परेशानी की असल वजह तक को भूल चुका था। जदियान जाने के लिए नेक्सन तैयार होकर नीचे आया तो बिल्कुल खामोशी थी। लॉन्च में सिर्फ हिना मौजूद थी। बलाखिर उसे हिना से ही पूछना पड़ा, हनान
कहाँ है? हनी सोया हुआ है, वो तो रोज सुबह उठ जाता है, सारी रात ठीक से सोया नहीं इसीलिए अभी तक सोया हुआ है। उसके गले में खराश थी, सारी रात खांसी करता रहा, मैंने उसे कफ सिरप दिया है, अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रहा था तो सो गया। अगर तुम सारी रात जागती रही हो तो तुम भी आराम कर लेती, उठने की क्या जरूरत थी? वो ये कहना तो नहीं चाहता था मगर कह ना सका। नसीम, मेरे लिए चाय लेकर आओ। उसने बिना उसे कोई जवाब दिए किचन की तरफ चेहरा किए नसीम को हाँक लगाई। वो किचन की तरफ बढ़ गई और ज़दियान न्यूज़ चैनल लगाकर डाइनिंग की कुर्सी खींच कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो चाय पकड़े उसके सामने खड़ी थी। जिंदा ने चाय उसके सामने रखी। आप नाश्ता नहीं करेंगे? नसीम कहाँ है? वो हिना का सवाल इग्नोर करते हुए अपने सवाल दाग गया। वो अपनी बेटी के घर उनसे मिलने गई है, शाम तक आ जाएंगी। वो अपनी जगह से उठा, वॉलेट, कीज और मोबाइल उठाई। ओके, खुदा हाफिज, वो कहती ही जाने के लिए मुड़ा। जब तक एक कप चाय नहीं पी लेते, ना खुदा आपकी हिफाजत करेगा ना मेरी। ज़दियान तगल्ला ने खमशगीन निगाहों से उसे देखा। वो अनसुनी करके बढ़ने लगा। प्लीज, उसकी मुल्तजी निगाहों से देखकर कहा। जाने क्या मन में समाई, वो वापस अपनी जगह पर बैठा और चाय का कप मुंह से लगाकर एक घूंट भरा। फिर मोबाइल निकालकर मिस्ड कॉल और मैसेज चेक करने लगा। ऐसे लगा कि वो किसी की नज़रों के हारिस में है। नजरदान ने सर उठाए बिना तिरछी निगाहों से देखा। वो सामने वाली चेयर पर मौजूद डाइनिंग टेबल पर बाजू रखे, थोड़ी के नीचे हाथ रखकर मनहक अंदाज में इसी पर झकटक नजरें जमाए हुए थी, जैसे आज ही उसके सारे नक्श ज़ेरबत कर लेने का इरादा किए हुए हो। दिल चाहता है हाथ बढ़ाकर छू लूं। आप सच में इतना खूबरू हैं या मुझे लगते हैं? सब लड़कियों के हुस्न के कसीदे पढ़ते हैं, मगर मुझे तो आपको देखकर लगता है कि खुदा ने आपको सही सही फुर्सत में बनाया होगा। वो दिल में सोच रही थी। ज़दियान उसका अंदाज देखकर ठटका। मैंने आज तक कभी इस लड़की को बढ़ावा नहीं दिया। फिर इसको मेरे किस अमल से लगा के वो सोचते हुए बोला, और बाकी की चाय वहीं छोड़ते बाहर की तरफ बढ़ गया। जिंदा ने मुड़कर ज़दियान के पुश्त को देखा और आयतन कुर्सी पढ़कर उसकी हिफाजत की दुआ की। फिर उसका छोड़ा हुआ कप, चाय का कप उठाकर अपने सामने किया, वहीं से उसे अपने लबों से लगाया जहां से उसके घूंट भरने का निशान था। उससे पहली बार चाय का जायका इतना अच्छा लगा। ज़दियान जो एक ज़रूरी फाइल लेने वापस आया तो उसके अमल को देखकर रह गया और बिना महसूस हुए वापस मुड़ गया। कमिश्नर वासिफ दुरानी अपने ऑफिस में चेयर पर बैठे थे। उनके चेहरे पर इस वक्त मुकम्मल संजीदगी छाई थी। एसपी फरजाम तगल्लत उनके सामने मौजूद अंदाज में खड़ा रहा था और सारे अंडर इंक्वायरी केसेस की डिटेल सर को दे रहा था, जैसे वो इंतहाई संजीदगी से सुन रहे थे। सर, ये फाइल दी पाशा कंग गैंग की है। फरजाम ने फाइल इनकी जानिब बढ़ाई थी। इन लोगों ने जुराइम की दुनिया में तहलका मचा रखा है और सारे पुलिस डिपार्टमेंट की नींदें उड़ा रखी हैं। फरजाम, मुझे इस फाइल के साथ वो अहम सबूत यूएसबी भी चाहिए। वो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। आज पहली बार वो शर्मिंदा नजर आ रहा था, जो हर बार सर उठाकर रखता था। कहाँ है वो सबूत? सॉरी सर, वो नहीं मिल रही। व्हाट डू यू मीन बाय कि नहीं मिल रही? मैंने आप पर भरोसा किया क्योंकि आप इस केस को लेकर बहुत अच्छे से चल रहे थे। कल भी आपकी एक पल की गफलत की वजह से रेड के दौरान पुलिस के 3 नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैंने वहां की सारी फुटेज खुद देखी है। आप जाने किन ख्यालात में खोए थे जब वो लड़की चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गई। आप जानते हैं आपकी जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही ने हमें किस कदर नुकसान से दो चार किया है। पहले कल का वाक्य और आज उस किसी की सबसे अहम कड़ी, वो यूएसबी हम सब से हाथ धो बैठे हैं। ये सब सिर्फ आपकी नाकारा कारकर्दगी की वजह से हुआ है। सॉरी सर, प्लीज एक मौका दें। नो एग्रीमेंट, यू आर सस्पेंड। वो हाथ उठाकर उसे बात करने का मौका दिए बिना सस्पेंड करने का फैसला सुना चुके थे। ज़दियान तगल्लत अपने ऑफिस में मौजूद अवाम के खतूत और दरख्वास्तें पढ़ने में महवर थे। कुछ लोग बाहर खड़े उससे मिलने के लिए वेटिंग एरिया में मौजूद थे। यहाँ पहले एक बुजुर्ग अंदर आए और उन्होंने बताया कि इन्हें रिटायर हुए 2 साल हो चुके मगर अभी तक इन्हें पेंशन नहीं मिल रही। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। वहाँ के लोग इनकी एक नहीं सुन रहे। इस सिलसिले में उनकी मदद की जाए। ज़दियान ने वहाँ के ऑफिस फोन फोन करके इनके कागजात में
कोई मसला आ रहा है उसे ठीक करके जल्द से जल्द इन्हें पेंशन देने का कहा। तो वो बुजुर्ग उसे दुआएं देते हुए वहां से चले गए। फिर एक औरत अंदर आई। साहब जी, मेरा खामन हार्ट अटैक की वजह से पिछले साल फौत हो गया था। मेरी 5 बेटियां हैं। मैं लोगों के घर काम करके गुजारा करती हूँ। मेरे पास कल जमा पूंजी, मेरा छोटा सा घर है, उसे भी मेरे देवर कब्जा करना चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। इस सिलसिले में आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। साहब जी, मुझ गरीब की कौन सुनता है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आप मदद कर दें। वो जैसे रींधी हुई आवाज में बोली, ध्यान से रहा ना गया तो उसने अपने पीए को इस औरत के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन भेजकर रिपोर्ट दर्ज करवाने में उसकी मदद के लिए कहा। आज लोगों की बहुत भीड़ थी, सबके मसले सुलझाते हुए वो ज़हनी तौर पर थक गया तो रेलविंग चेयर की पुष्ट पर अपना सर रखकर आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद पियोन चाय का कप उसके सामने रख गया। ध्यान की नज़र सामने रखे कप पर पड़ी तो उसने गहरा सांस लेकर चाय का सप लिया और बेदिली से कप को थोड़ा पीछे खिसकाया। पहली बार हुआ था कि उसे चाय का जायका पसंद नहीं आया। उसे सुबह वाली चाय का जायका याद आती लबों पर मुस्कुराहट बिखरी, मगर फौरन ही लब भेज लिए। मैं क्या करूं विनिया, मैं तुमसे बेवफाई नहीं करना चाहता, मगर वो लड़की अपने उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मेरे दिल व दिमाग पर छाने लगी है। मुझे माफ़ कर दो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उससे दूर रहूं, मगर वो बार बार मेरे सामने आती है। मैं क्या करूं। वो फिर से आंखें बंद किए टेक लगा गया। परेशानी पर सोच की लकीरें उभरी हुई थी और चेहरा अभी भी इज़्तिराब का शिकार लगा। बात वो यार्ड के ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल रही थी जब उसे चक्कर आया। कबर्ड का सहारा लिए वो वहीं बैठती चली गई। क्या हुआ नूर, तुम ठीक हो? यार्ड जो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला था, टावल एक तरफ फेंक के एकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। पता नहीं, जब से उठी हूँ चक्कर से महसूस हो रहे हैं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। वीकनेस होगी यार, कुछ खाया पिया करो। अभी वो उसको कह ही रहा था कि नूर को मंथली सी महसूस हुई थी और वो वॉशरूम की तरफ भागी थी। आर यू ओके? वो भी उसके पीछे गया था। उसकी आंखों में वॉमिटिंग की वजह से आंसू देखकर उसे उसकी फिक्र हुई थी। टैब खोलकर उसने उसका मुंह खुद साफ किया था और उसे थाम कर वॉशरूम से बाहर आया था और टॉवल से चेहरा साफ किए बोला, चलो डॉक्टर के पास चलें। उसने अलमारी से शॉल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। मैं ठीक हूँ, उसने तकिए पर सर गिराते हुए कहा। कहीं से भी ठीक नहीं लग रही, उठो चलो। उसने उसे उठाकर बिठाते हुए कहा, मैं नहीं चल सकूंगी, मेरा सर बहुत घूम रहा है, प्लीज़। उसने दोबारा तकिए पर सर गिरा लिया था। निधि, बीपी लो हुआ होगा या फूड पॉइजनिंग हुई होगी, एक बार चेकअप करवा लो प्लीज़, मुझे टेंशन हो रही है, फिर वापस आकर आराम करना। उसने उसे उठाकर बिठाते हुए कहा और अब वो उसके कांधों पर शॉल फैला रहा था। फिर उसके पाँव के पास चप्पल की जैसी चप्पल उससे पहना लिया था। वो खुद तेजी से चेंज किए तैयार हुआ। यार उसे थामे गाड़ी तक आया था। उसे गाड़ी में बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। अब वो उसे डॉक्टर के सामने ले लिए बैठा था। कब से ये कंडीशन आपकी? डॉक्टर ने तफसीली चेकअप के बाद पूछा था। कल से हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, मगर आज ज़्यादा फील हो रहे हैं और सुबह से वॉमिटिंग भी हो रही है, उसने बताया था। ये आपके हस्बैंड हैं? जी मैं हस्बैंड हूँ इनका, सब ठीक है ना? याक ने परेशान होते हुए पूछा। जी सब ठीक है, एक्चुअली आपकी मिसेज एक्सपेक्ट कर रही हैं, यू बोथ आर कमिंग टू पेरेंट्स। बहुत 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 मुबारक हो आपको। वो दोनों की तरफ देखकर बोली, लेकिन आपकी मिसेज काफ़ी वीक है। मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो आप लाजमी करवा लें और ये मेडिसिन रेगुलर यूज़ करवाएं और फ्रेश जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये इंटरनी बहुत वीक हैं, इनकी डाइट का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। कुछ विटामिन लिख रही हूँ, ये ज़रूरी वक्त पर लें। डॉक्टर ने अपने पेशेवाना अंदाज में कहा। जी बेहतर, थैंक यू सो मच। यार की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। वो क्लिनिक से निकल आए थे, उसे बड़े प्यार से आराम से उसने गाड़ी में बिठाया था। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने उसकी पेशानी पर मोहब्बत की महज साबित की थी। थैंक यू सो मच नूर, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, समझो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। इतने अरसे बाद नूर ने उसके चेहरे
पे खुशी से तमतमाता हुआ देखा। याक को खुश देखकर उसकी खुशी में भी कई गुना इजाफा हो गया। आज वह दोनों मुकम्मल होने जा रहे थे। ये 2 माह उसने याक की संगत में अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन गुजारे थे, ऐसे जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। वो आंखें मूंदे दिल में इस ख्वाब के कभी भी ना टूट जाने की दुआएं मांग रही थी। हम घर फ़ोन करके बताएं? नूर ने याद आने पर आंखें खोलकर याक से पूछा। याक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और साबत में सर हिलाया। ये लो, कॉल करके बताओ। उसने डैशबोर्ड पर पड़ा फ़ोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैं कैसे बताऊं? क्यों, क्या हुआ? मुझे शर्म आने आएगी। उसकी बात सुनकर गाड़ी में याक का कहकर गूंजा। वो खजल होकर चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेर गई, जहां बाहर के मनाजिर तेजी से गुजर रहे थे। इससे पहले कि फजर की अजान होती, वो अपनी आंखें बंद किए बिस्तर में से निकली और पाँव में चप्पल आंचते हुए वो चादर अपने गिर्द लपेट कर बाहर निकली। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरी मंजिल के पहले कमरे के दरवाजे पर रुक गई। आंखें होश बंद थी। अब तो उसे ये रास्ता जेर अजबर हो चुका था। कितनी कदम उठाएगी तो यहाँ पहुंचेगी? उसने दरवाजे की नाप में आंखें खोलकर अंदर देखा। वो करवट के बल लेटा हुआ था। चेहरा वाज़े दिखाई दे रहा था। जिससे दिन से उसका निकाह हुआ था, वो बिलानागा ये फरीज़ा नजर अंजाम देती। हर रोज़ अपने दिन का आगाज़ वो सबसे पहले इसका चेहरा देखकर करती। ये काम उसके मामूलियात में शामिल हो चुका था। उस पर नज़र पड़ते ही आंखों में सुकून सरहद करने लगा, जान होने लगी। वो कसमसाया। उससे पहले कि ज़दियान उठता, वो तीर की तेज़ी से नीचे उतरकर अपने कमरे में वापस आई। नज़र सोए हुए हनान पर डाली और वज़ू के लिए बढ़ गई। नाश्ते से फ़ारिगत के बाद ज़दियान लॉन्च में सोफे पर बैठे हुए हनान की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या कर रहा है हमारा बेटा? उसने वहीं बैठे हुए हनान से पूछा। वो जो हाथ में ड्राइंग ड्राइंग नोट बुक लिए इस पर पेंसिल और कलर से कुछ तबीयत आजमाई करने में महवर था, सर उठाकर ज़दियान की तरफ देखा। बाबा, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, आप देखेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी ज़रूर देखूंगा। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। हिना उसके साथ सोफे पर बैठी थी और हाथ में फ्रूट कस्टर्ड का बॉल पकड़े उसे साथ साथ खिला रही थी। ज़दियान उनके साथ आकर बैठा। दरमियान में हिनान था और वो दोनों उसके इतराफ में बैठे थे। ये देखें बाबा, कैसी है? वो इश्तिकाक से पूछने लगा। ज़दियान ने जब एक नज़र उस ड्राइंग पर डाली, पहले तो खामोश हुआ, मगर फिर उसकी आंखों में चमकती हुई खुशियों के रंगों को मात पड़ते ना सका। बहुत 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 प्यारी है। ज़दियान ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। हुई इस ड्राइंग में ज़दियान और हिना और हनान ने खुद को बनाने की कोशिश की थी। इमेज इतने वाजे नहीं थे, मगर ज़दियान ने पल भर में अंदाज़ा लगा लिया था कि वो क्या बनाना चाहता है। ज़दियान ने अपनी कशीदा हथेली हन्ना के आगे की। वो हैरान के नज़रों से उसे देखने लगी। हाथ दो। वो हनान के सामने अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाए बोला। उसने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसके हाथ रखने की देर थी, हिनान ने अपना हाथ इन दोनों के हाथ पर रख दिया। बाबा, आपको कैसे पता चला मैंने ये बनाया था? वो अपनी तेज आवाज में पुरजोश लहजे में बोला। ज़दियान ने दूसरे हाथ से प्यार से उसके सर के बाल बिगाड़े। बाबा को सब पता चल जाता है बाबा। उससे पहले हिनान कोई और बात कहता, ज़दियान के फ़ोन पर रिंग होने लगी। फ़ोन पर शहबाज तगल्लत का नंबर देखकर फ़ौरन चेहरे के जाविये बदले। नाराज़गी में चाहते हुए भी वो कॉल रिसीव कर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ज़दियान? जी ठीक हूँ। मेरा अपने पड़पोते हनान से मिलने का बहुत दिल है। तुम आ जाओ, उसे मुझसे मिलवा दो। वो दिल में सोच रहे थे हनान के बहाने वो ज़दियान से भी मिल लेंगे। दरअसल मुझे आज असम्बली में जाना है। वजारतों का फैसला होने वाला है। देखें कौन सी वजारत मेरे हिस्से में आती है। मैं हनान और उसे ज़दियान ने हिना का नाम लेने से ग्रेज बरता। ड्राइवर के साथ भेज दूंगा। आज रात वो दोनों आपके पास रुकेंगे। मुझे पता नहीं इस्लामाबाद से वापसी पर कितना वक्त लग जाए। चलो ठीक है, इन्हें भेज दो। जी ठीक है, ज़दियान ने कहा। ज़दियान वो उसे मुखातिब किए बोले। जी, वो पूछ रहा था कब वापस आओगे अपने घर हमेशा के लिए? कब मुझे माफ़ करोगे या यूं ही नाराज़ रहने का इरादा है? आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्द आऊँगा। कहकर फ़ोन एक तरफ रख दिया। आप दोनों तैयार हो जाएं, फिर ड्राइवर आपको तगल्लत वाला छोड़ आएगा। वो हिना को मुखातिब किए बोला। मगर मैं कैसे वहाँ अकेली? मैं वहाँ किसी को जानती नहीं। वो रुक रुक कर बोली। जानती तो आप यहाँ भी किसी को नहीं थी, अब जान चुकी हैं। आपके लिए अजनबी माहौल में एडजस्ट होना कौन सा मुश्किल काम है? वो तंज का तीर भिगो कर मारा था उसे, वहाँ भी जान जाएंगी।
اس کی बात सुनकर उसकी आंखों में फौरन नमी उतरी। ज़ेदान जानबूझकर उसे खुद से बज़दन करने के लिए तपा रहा था। जल्दी तैयार होकर आए, फिर मुझे भी इस्लामाबाद के लिए निकलना है, वो सपाट अंदाज में बोला। हिना अपने साथ हनान को लिए अंदर चली गई और कुछ देर में तैयार होकर बाहर आई। ज़ेदान ने एक सरसरी सी निगाह उसकी हुलिये पर डाली। सादा सी पुरानी सी शलवार कमीज में मुबले सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाए जमाए के बेशकन लिबास था। अलबत्ता हिनान के कपड़े बेहतरीन थे। आपके पास कोई ढंग का ड्रेस नहीं? बेशक वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता था, मगर दुनिया की नज़र में तो वो उसकी बीवी ही थी। उसके घर वाले उसे इस तरह देख कर न जाने क्या सोचें। आज पहली बार उसने हिना के लिबास पर तवज्जो दी थी और शर्मिंदा हुआ। शायद आज से 2.5 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो जो कपड़े अपने साथ लाई थी वही पहन रही थी। कमीज भी उसकी शायद हाइट बढ़ने की वजह से थोड़ी शॉर्ट लग रही थी। उसने कभी भी उससे फरमाइश नहीं की किसी भी किस्म की। शायद उसने कभी उसे इतना फ्री ही नहीं होने दिया था कि वो कुछ मानती। वो हर माह नसीम को रकम दे देता ज़रूरी चीज़ों के लिए, और नसीम ही हनान के लिए दूध, पैम्पर, कपड़े, घर की ग्रोसरी वगैरह ले आती। मैं बाहर सबकी मदद करता रहा, कितना गाफिल रहा कि घर में भी वो सोचने लगा यही ठीक है। वो मिनमिना कर बोली, चलें ठीक है, आप दोनों जाएं, मैंने ड्राइवर से कह दिया है। हिना हनान का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो एक महल नुमा घर के सामने रुके। अंदर दाखिल हुए तो सामने ही शबाब तगल्लत सोफे पर बरजुबान थे। जमात तगल्लत और निगत बेगम भी वहीं मौजूद थी। निगत बेगम सबकी काइशें काट कर जमात तगल्लत की तरफ बढ़ा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हिना ने सबको मुश्तक़ा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने जवाबन कहा। दिल और फरजाम भी अपने रूम से तैयार होकर निकले। सब एक दूसरे से मिले। दिल और जमात तगल्लत थोड़ी देर बाद ऑफिस जाने के लिए निकल गए। फरजाम घर पर ही था। सस्पेंड होने के बावजूद भी वो पाशा गैंग पर नजर रखे हुए था। वो जल्द ही सब में घुल मिल गई। काफ़ी देर तक आपसी खुशगपियों का सिलसिला चलता रहा। गुफ्तगू का मौजू ज़्यादातर ज़देयान ही था। सब उसे इसके बचपन के किस्से सुना रहे थे। बातों ही बात में पता चला कि कल ज़देयान की बर्थडे है। निकत बेगम दोपहर के खाने की तैयारी के लिए किचन में जाने लगी तो हिना भी उनके पीछे चली आई। हनान शबाब तकल्लत के साथ पूरा बाहर लॉन में खेल रहा था। साथ वाले इकबाल साहब के पोते पोतियां जो हनान के हम उम्र थे वो भी वहां आ चुके थे। सब बच्चों के साथ मिलकर खेलता हुआ हनान आज बहुत खुश नजर आ रहा था। निगत बेगम के मना करने के बावजूद भी हिना ने खाना बनाने में इनकी मदद की। आंटी, आप मुझे केक बनाना सिखाएंगी? वो झिझकते हुए पूछने लगी। हम आता है, तुम ज़दियान के लिए बनाना चाहती हो? जी। वो सर झुकाए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। फिर इन दोनों ने मिलकर केक बेक किया। दिन गुजरने का पता ही ना चला कब दिन से रात में बदल गई। दिलबरा और जमात गलत भी ऑफिस से वापस आ गए थे। निकत बेगम ने हिन्ना को बातों ही बातों में नूरुल्लाह और दिलबरा दोनों के घर खुशखबरी के बारे में बताया। वो इन दोनों को सुनकर बहुत खुश हुई कि इनके घर बेबी आने वाले हैं, मगर अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी रही थी। रात 10 बजे के करीब फरजाम घर आया तो वो जो लॉन में मौजूद थी उसे वापस आते इसकी तरफ बड़ी। भाई, आपसे कुछ कहना था। वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ कर झुकते हुए बोली, जी बताएं, क्या बात है भाभी? वो मुझे घर जाना है, आप छोड़ आएंगे? क्यों, खैरियत? इतनी रात गए वापसी? दादा जान ने तो कहा था कि आपकी कल वापसी होगी। वो ना हनान पहली बार घर से कहीं बाहर रात रुका है, उसे यहाँ नींद नहीं आ रही, अभी तक जाग रहा है। हनान लॉन में रखी गई कुर्सियों में से एक पर बैठा हाथ में मौजूद छोटी सी बॉल के साथ खेल रहा था। ओह, और तो कोई बात नहीं, कहीं किसी से नाराज़गी? वो अपना खासा जाहिर करते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वो उनकी सालगिरह है इसीलिए। वो उसे मासूमियत से असल बात बता गई। ओह, तो भैया को सरप्राइज देने का इरादा है? वो खुशी से चहक कर बोला। वो मुस्कुराकर सहाबत में सर हिला गई। आए हनान को ले अंदर हना हनान को ले आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो हनान की तरफ आई और उसे साथ लिए फरजाम के साथ घर रवाना हुई। घर वापस आई तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला। पिछले वाक़ये के बाद रदियान ने गेट पर गार्ड्स का मुस्तकिल इंतज़ाम कर लिया था। वो फरजाम को शुक्रिया अदा करते हुए अंदर आई तो नसीम उसे देखकर सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल आई। उसने एक हाथ में केक वाला
हैंड कैरी उठा रखा था तो दूसरे से हनान की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हिना जी, आप वापस भी आ गई? नसीम ने हैरत ज़द आवाज़ से पूछा। जी, इस घर के बिना आपका दिल नहीं लगता ना? कहीं भी नहीं, ऐसी बात नहीं। ये इसमें क्या लाई हैं? वो उसके हाथ में मौजूद हैंड कैरी को देखकर पूछ रही थी। वो आज रात 12 बजे इनकी सालगिरह है, इनके लिए बनाया है। वो थोड़ा शर्माते हुए बता रही थी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आप खुद भी अच्छा सा तैयार हो जाएं। मगर मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है, वो उदासी से बोली। क्या हिना जी, साहब के कमरे की अलमारी में बीबी जी के इतने कपड़े मौजूद हैं, इनमें से कोई पहन ले। मगर वो गनिया आप ही के हैं, मैं कैसे पहन सकती हूँ? नहीं नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगी, रहने दें। कुछ नहीं कहते साहब, अब आप भी तो उनकी बीवी हैं, भला आप पर गुस्सा क्यों होंगे? आप सच कह रही हैं ना कि वो गुस्सा नहीं होंगे? आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं कहते। नसीम ने उसकी हिम्मत बंधाई। हनान की नींद से भारी आंखें देखकर उसे साथ लिए अंदर आई और दरमियान के कमरे का रुख किया। हनान बिस्तर पर लेटती ही कुछ देर में वो सो चुका था। इसने उस पर कंफर्ट ओढ़ा दिया और नाइट बल्ब रोशन किया। हनान को तेज रोशनी में सोने की आदत ना नहीं थी। वो उसे सुलाने के बाद कबर्ड की तरफ बढ़ी। एक तरफ का डोर लॉक था, दूसरा खोला तो उसमें जतियान के कपड़े हैंग किए गए थे। एक बड़ा सा पैकेट सामने नजर आया तो उसने वो बाहर निकालकर डोर बंद किया। हैंग को खोला, पैकेट को खोला तो उसमें ब्लैक कलर की दीदा जेब साड़ी थी। ये पहन लूं? गनिया आपी भी ऐसे कपड़े ही पहनती थी, मगर मुझे तो उसे पहनना ही नहीं आता। उसने खुद कलामी की। अभी सोच ही रही थी कि सबसे नीचे वाले हिस्से में शॉल पड़ी नजर आई। उसने वो खींच कर निकालनी चाही क्योंकि साड़ी का ब्लाउज काफी मुख्तसर लगा उसे, इसलिए। मगर उस शॉल के साथ एक डायरी भी नीचे गिरी है ना। ने उसे उठाकर खोला और गनिया का नाम था, यानी ये गनिया आपी की डायरी है। वो शाल एक तरफ रखकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़रा बाहर को होती हुई तो बाहर जलती हुई लाइट में उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। डायरी के शुरू के आधे सफ़ात खाली थे, दरमियाने सफ़ात में से एक पर उससे कोई इबारत नज़र आई। वो पढ़ने लगी। मेरी प्यारी डायरी, आज मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तुम सुनोगी ना? मैं गनिया अल्ताफ़, मेरे वालिदैन ने पसंद की शादी की थी तो इन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने शहर में आकर अपनी नई ज़िंदगी बसाई। मैं इनकी इकलौती औलाद, मैं और ज़दियान एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मुझे पहले दिन से ही वो बहुत अच्छा लगा और उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। आगे एक हंसी वाली इमोजी बनाई गई थी। एक कार हादसे में मेरे वालिदैन मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। मैंने एक लड़की होकर खुद ज़दियान को शादी के लिए पेशकश की। पहले तो वो खूब भड़का कि वो मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझता है, मगर बाद में उसे जब मेरे हालात का इल्म हुआ तो उसने मेरी मदद करने के लिए, मुझे अकेला देखकर सहारा देने के लिए अपने घर वालों की मुखालफत मोल लेकर मुझसे निकाह कर लिया। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं मुझे अपनी ज़िंदगी मुकम्मल लगने लगी है। उन्होंने कभी मुझे ताना नहीं दिया कि मैंने इन्हें प्रपोज़ किया था। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझसे उन्स रखने लगे हैं। मैंने इनसे वादा लिया है कि वो मुझसे कभी बेवफाई नहीं करेंगे, मुझे कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। तुम उनके वादे की गवाह रहना प्यारी डायरी, और हमारे लिए दुआ करना जल्द ही एक प्यारा सा बेबी हमारी ज़िंदगी में आ जाए और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। मैं उनसे कभी अलग नहीं होना चाहती, उनको खुश हमेशा देखना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आखिर में लिखा था, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गनिया। डायरी में लिखे गए लफ्ज़ पढ़ते हुए उसकी आंखें भीगने लगी, साथ साथ गाल भी। गनिया आप ही, मैं आपकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगी। मैं इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगी। वो आंखें साफ किए वापस कमरे में आई और डायरी वापस पीछे करके बहिफाजत रख दी। फिर साड़ी उठाकर वाशरूम में चली गई और शावर लेकर बाहर आई। बालों को हल्का सा सुखाए शाने की एक तरफ रखा जो अभी भी नम थे। उसने वो ब्लू उसने वो ब्लैक साड़ी जिप चेंज कर तो ली थी, मगर उसके ब्लाउज स्लीवलेस थे। आगे का गला बहुत गहरा था जबकि पिछला हिस्सा ना होने के बराबर था। पूरे ब्लाउज को पीछे से एक नाजुक सी डोरी से बांधा गया था और पूरा ब्लाउज उस एक वाहिद डोरी के सहारे था। पीछे से कमर और आगे से पेट भी भरना हो रहा था। गला डीप होने से आगे का जिस्म भी रानियां बिखेर रहा था। उसने बामुश्किल साड़ी की फॉल बंद करके पल्लू आगे से उठाकर शाने पर रखा। हल्की सी आवाज़ से दरवाज़ा खुला। पल्लू जो वो शाने पर अटकाने की कोशिश कर रही थी सिरक कर नीचे गिरा। कमरे में फैली हुई
मुरझली सी रोशनी में ज़दियान को इसकी बैक साइड ही दिखाई दी। वो इस्लामाबाद से वापसी पर गाड़ी के बजाय फ्लैट से आया था, इसीलिए जल्दी पहुंच गया। गनिया उसके मुंह से बिला इख्तियार निकला। वो एक ही जुस्त में उसके करीब पहुंचा और उसकी कमर से हाथ गुजारते हुए उसे पीछे खुद में भेजा। बहुत अच्छा किया तुम वापस आ गई, ज़दियान उसे गनिया समझ कर कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ हिना समझी कि वो उसके वापस आ जाने पर खुश है। ज़दियान ने उसे खुद में शिद्दत से भेज रखा था। इतनी गुर्बत पर उसे लगा कि उसका आज उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसका रूह रूह कांपने लगा। वो उसकी नीम जुल्फों की महक को खुद में उतारते हुए बेखुद हुआ। ब्लाउज की डोरी को एक ही बार से खोला। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। वो अपने लबों के लम्स उसकी कमर पर छोड़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था। उसका सारा जिस्म बुरी तरह कंपा रहा था। उसकी शिद्दत से भरपूर अमल पर उसने अपनी आंखें जोर से मीच ली। पहली बार खुद को इतनी मुश्किल में गिरा पाया। सांसें जैसे हलक में अटक चुकी थी। हिना ने तो सोचा ना था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा और उसे घुमाकर उसका रुख अपनी जानिब किया। उसके अमल पर तो उसकी सही मायनों में जान पर बन आई। क्यों आज वो उसकी जान निकालने के दर पर था। दोनों हाथों उसकी कमर के गिर्द रखकर उसके पेट की नरमाहट महसूस करते उस पर अभी अपने लब रखने ही लगा था कि उसकी शानों पर हाथ रखे उसे पीछे धकेल गई। सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और बिस्तर पर पड़ी शाल उठाकर बाहर भागी। साड़ी का खुला पल्लू उसके पाँव में अटक रहा था। वो उसे हाथों में लपेटते गिरते पड़ते बाहर को भागी। ज़दियान अपनी जगह साख्त रह गया। उसके भागने से शाने की एक तरफ रखे बाल पोस्ट पर बिखरे। ये गनिया नहीं, वह मुश्किल वो खुद से बोला। उसके बाल तो शाने तक थे, इतने लंबे बाल उसके नहीं। उसने बहुत बार गनिया से कहा था कि बाल लंबे करे। कौन थी ये? वो हवासों में लौटा और कमरे के माहौल को जांचा। साइड टेबल पर ट्रे में केक मौजूद था, जिसे खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था और इस पर HBD हैप्पी बर्थडे ज़दियान लिख चॉकलेट क्रीम से लिखा गया था। बिस्तर पर हनान सोया हुआ था। उसे सब समझने में लम्हा लगा। वो उसके पीछे बाहर निकला। ये वापस कब और कैसे? और साथ वाले खाली कमरे में दरवाजे के साथ लगी अपनी उखड़ी हुई सांसें बहाल कर रही थी कि झटके से दरवाज़ा खुला और वो धक्का लगने से गिरते गिरते बची। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में जाने की और गनिया की चीज़ों को छूने की? वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ दहाड़ा। अगर तुम इस सोच में हो कि कभी मेरी ज़िंदगी में गनिया की जगह ले पाओगी तो भूल है तुम्हारी। ऐसा होना नामुमकिन है। बाखुदा अगर जीनिया आप ही इस दुनिया में होती तो मैं कभी उनकी जगह लेने के बारे में सोचती भी नहीं। वो अपने गिर शाल लपेट चुकी थी। मगर आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि अब वो हम में नहीं? दूसरी बात, मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहती, अपनी खुद की जगह बनाना चाहती हूँ। बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहती हूँ। अपनी खुशियाँ आप पर वार कर आपके दर्द से जुड़ जाना चाहती हूँ। वो रींदी आवाज़ में बोली, आवाज़ में अभी भी कंपाहट का अनासर नुमाया था। तुम कभी भी अपनी किसी भी अमल से मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। उस दिल के किले के गिर्द की दीवारें बहुत ऊंची हैं, जिन्हें कोई भी फलांग कर अंदर नहीं आ सकता। वो पथरीले अंदाज में इसकी तरफ देख रहा था और आंखों के जरिए उसे अपना ख्यालात का इजहार कर रहा था। आप दिल के किले के गिर्द जितनी मर्जी ऊंची दीवारें बना लें, मैं भी इस तक रसाई पाने के लिए खिड़की बनाकर रहूंगी। वो भी उसकी भूरी आंखों में देखते हुए उसकी नजरों के वार का जवाब नजरों से दे रही थी। जबान चुप थी, दोनों की आंखें बोल रही थी। मेरे हर दिन की शुरुआत आपको देखकर होती है और रात का अख्ताम भी आपको सोचकर। मेरी हर हर धड़कन ने, हर हर सांस ने आपके नाम के मोती की माला परोई है। जानते हैं आप पहले दिन से ही मुझे चाहते हैं। कैसी गरीब और मजबूर को मोहब्बत का एहसास देना, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी तलक के एहसास करना, बस यही मोहब्बत है। वो दिल में बोली, मेरी ज़िंदगी में किसी की कोई जगह नहीं, खास कर तुम्हारी। जब आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं, अपने बेटे को भी आप पाल सकते हैं, तो मेरा क्या काम इस दुनिया में? जब मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं तो क्यों मैं ज़िंदा हूँ? इस बार वो उसकी आंखों की ज़ुबान समझकर आंखों से जवाब देने की बजाय ज़बान से बोली। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाई। सामने उसे एक बास्केट में छुरी नजर आई। उसने लपक कर उसे उठाया और एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना अपनी कलाई पर रख कर अपनी नस काट ली। ज़दियान तखल्लुत उसके रूह अफ़ज़ा अमल पर नगदिशा रह गया। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसके इतने शदीद रद्द अमल की। उसकी कलाई से खून फुआरे की तरह निकला। जितनी चाह
चाहत मैंने आपसे की है ज़दियान गलत इतनी अगर अपने खुदा से की होती तो वो भी मिल जाता। कितने कठोर और संगदिल हैं आप। वो बेजान मूरत की तरह टूटकर बिखरते हुए उसके पाँव में गिरी जाएं। अब मैं आपके पीछे नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ अपने खुदा के पास। उसी दुनिया उसे मांग लूँगी आपको हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में। इस दुनिया में नहीं तो क्या हुआ, इस जहान में आपका साथ अपनी तकदीरों में लिखवाऊँगी। फर्श पर बेजा बजा उसका खून बिखर चुका था। ये सब बस चंद लम्हों में हुआ, वो खुद भी समझ ना सका।